Good afternoon, students. Yesterday we have started with a new concept, that is constraints. Constraints are nothing but when you want to apply some rules or conditions on your table to ensure the data integrity. So yesterday we have seen the two different constraints, unique constraint and not null constraint. In that we have seen how to apply this constraint at time of table creation or after table creation, and how to drop this constraint, and when after applying this constraint, what changes you can see in your table at the time of describe table command also. We will just revise within a 1 minute whatever we have seen yesterday. So here unique key, in unique key it is going to allow the null values. अगर आपने किसी कॉलम को यूनिक की बनाया है तो उसमें आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अलाउइंग यू टू रिडंडेंट डेटा, मतलब सेम डेटा आप रिपीट नहीं कर सकते. लाइक फॉर रोल नंबर 1 एक बार एक रो में डाल दिया, यू कैन नॉट यूज द सेम रोल नंबर फॉर अनदर रो. दैट मीन्स रिडंडेंसी इज नॉट अलाउड इन यूनिक की, बट null values are allowed it. Then second is not null constraint. In not null constraint, the null values are not allowed. किसी कॉलम को अगर आपने not null constraint दे दिया, so it is not going to accept the null values for that column, but it can allow the redundant value. उस कॉलम के लिए redundant value वो ले सकता है, but null values को accept नहीं कर सकता है. So this is a two different constraint, unique key and not null key. Now next that we are going to see is a primary key. So primary key is a combination of unique key and not null key. So whatever the good side of unique key and good side of not null key, that are combined, and by combining this we make it as a primary key. So if I apply a primary key on a particular roll number, that means that value, that column is not going to be allow null values and will not going to allow the redundant value. तो प्राइमरी की अगर आपने किसी कॉलम को दे दिया है तो उस कॉलम में डुप्लीकेट यानी रिडंडेंट वैल्यूज भी अलाउड नहीं करेगा वो, और नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं करेगा. सो नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी की एंड विल सी द different other constraint also. Like after primary key we'll see the default constraint, then next is check constraint, and last one is foreign key and reference key constraint. So we'll start with the primary key. Again, for every key we'll see how to add that key or that constraint at time of table creation or after table creation if you forgot to give that constraint at time of table creation. So we'll see the two examples. So first example, create table. I'm using the same table name, then roll number, int, and just we have to add here the keywords as primary key, that's it, comma. So instead of unique key we have just added here a primary key. Then second column I have added is a varchar and just given a size. Now if I describe the table A1 now, you will see what are the different changes. So here they have given that here the null is not allowed for roll number, and constraint we have added is PRI, that is primary key. So when you make a column as a primary key, automatically it is not going to allow the null values. But if you go with a unique key, तो unique key में null के लिए value yes ही होती है. So this is the main difference between unique key and primary key. ये काफी बार oral में या आपके question paper में ये question पूछा जाता है. Okay. So now we'll see when I am trying to insert some values in this table. So what different things you can observe. So I am adding here insert into A1 value. So I have given here value 1 for roll number, and for name I have given the value as like suppose Akash. This is the first value I have inserted. Then second value I am inserting where I am making the same value for roll number. देखते हैं अभी हम duplicate value देख के देखते हैं क्या होता है. And I have used here the name as different. So you can see it is giving an error, duplicate entry 1 for key primary.
मीन्स 1 आप जिस कॉलम के लिए ऐड करना चाहते हो दैट इज रोल नंबर, so that roll number is as a primary key, so you cannot make a duplicate entry, means it is not going to allow the duplicate entry. If I now change the value of roll number from 1 to 2, it is accepting that value. Okay, now I am trying to insert अ नल वैल्यू इन रोल नंबर. अब नल वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं? नल लिखने की जरूरत नहीं होती. जब आप रोल नंबर के लिए वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू जाता है. So here I want to skip the value for roll number. See here, we have a 2 column. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे टेबल में कितने कॉलम से? 2 कॉलम से. और जब आप जितने कॉलम है उस टेबल में हर कॉलम के लिए वैल्यू दे रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर के लिए भी वैल्यू दी है और नेम के लिए वैल्यू दी है, तो आपको ये वाला इंसर्ट का फॉर्मेट यूज करना है. सिंपल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड डायरेक्टली यू आर पुटिंग अ वैल्यूज. ओके, तो इसमें जितने भी फील्ड है, जितने भी कॉलम है, हर कॉलम की वैल्यूज आपको देनी पड़ती है जस्ट बाय सेपरेटिंग अ कॉमा. नाउ आई डोंट वांट टू गिव द वैल्यू फॉर रोल नंबर बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज अ नल. तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मेट होता है इट इज लाइक दैट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम. अब आपको बताना है कौन से कॉलम के लिए आप वैल्यू दे रहे हो. जैसे मुझे रोल नंबर के लिए वैल्यू नहीं देनी है लेकिन नेम ये कॉलम के लिए वैल्यू देनी है. सो आई एम पुटिंग हियर नेम इन A1, ब्रैकेट में मैंने नेम डाल दिया एंड देन आई एम पुटिंग एज अ वैल्यू, और मैंने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे some name I have put it. Okay, so can you see here it is giving a error, roll number does not have a default value. default value नहीं है, इसका मतलब आप null ये value insert नहीं कर सकते हो क्योंकि रोल नंबर के लिए हमने कुछ वैल्यू नहीं दिए, तो वो ट्राई करेगा रोल नंबर के लिए नल वैल्यू इंसर्ट करने का, एंड इट इज नॉट अलाउड इन अ प्राइमरी की. सो यू कैन अंडरस्टैंड, जब आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हो तो उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते हो. MySQL will give you the error automatically when you are trying to insert duplicate values and null values to the column on which you have applied the primary key. So this is the beauty of primary key. तो जैसे आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, उस कॉलम में कभी भी नल वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, विच इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ बैंक अकाउंट एंड यू वांट कि हर कस्टमर को अकाउंट नंबर दिया जाता है. तो अकाउंट नंबर हर एक का यूनिक होना चाहिए. ऐसा कोई कस्टमर नहीं होना चाहिए कि जिसको अकाउंट नंबर दिया ही नहीं है. So that time you can make account number as a primary key, or in any shop where it is storing a database of customer. So they are giving a customer ID to each and every customer and they don't want that any customer number should be repeated. हर customer को unique customer number देना चाहिए और ऐसा कोई customer नहीं होना चाहिए कि जिसको हमने customer नंबर या कस्टमर आईडी नहीं दिया है. सो व्हेन यू वांट दिस टू थिंग्स टू बी अप्लाइड ऑन एनी कॉलम इन योर टेबल, so you have to make that column as a primary key. So I hope you understood the primary key concept. So how to add a primary key here. Okay, तो ये हमने ऐड किया था प्राइमरी की at the time of table creation. Okay, now I want to drop the primary key. अब हमने जो प्राइमरी की ऐड किया, अभी हम उसको उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना चाहते हैं. So it is very simple. I have not added any name. So if you see here कि जब भी हमने यहाँ पे प्राइमरी की दिया था तो हमने प्राइमरी की को कोई नाम प्रोवाइड नहीं किया था वहां पे. We have not given any name. I have just added a primary key with the roll number. So when I want to alter, drop that primary key, I will use a very simple command, that is alter table, then A1, modify R number, just provide again the int and value as a 3. अब मैंने प्राइमरी की एक कीवर्ड नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ओके, एंड व्हेन नाउ आई एम यूजिंग अ डिस्क्राइब A1, so you can, okay, why it is not affected. Okay, we'll check out why it is not modifying. First we will see how to add a primary key after the table creation. अभी हमने देखा कि प्राइमरी की को कैसे ऐड करना है at the time of table creation. Now we'll see how to add a primary key after table creation. तो अभी हम एक छोटा टेबल पहले ऑलरेडी बना लेते हैं. So create
table A2, then second column varchar with size. Now I have not added a primary key constraint to r number. R number के बजाय rn हो गया है वहां पे. Now I am using a describe table command. So you can see no pri constraint is added in a key, and for null both the column is having yes, मतलब दोनों column में आप null values insert कर सकते हो. Now I want to add a primary key to r number after table creation. So I have to use alter table. Table name is A2. Then add constraint. Whenever you are adding a constraint after table creation, आपको alter table, table का नाम आप add कर रहे हो. जब आपको primary की, unique की, foreign की add करना है, you have to use the add keyword. अगर आप default not null check ये कुछ add करना चाहते हो तो आपको modify ये keyword use करना है. So add, आप क्या add कर रहे हो? आप कोई column को add नहीं कर रहे हो, आप constraint add कर रहे हो. So I have to use a keyword as a constraint. Then name of constraint आप कुछ भी दे सकते हो, P1, P2 और A1, A2, anything. That is a name for that constraint. Constraint का type इसके बाद लिखना है. So the constraint type is here is a primary key. So alter table, table name, add constraint, name of constraint, any name you can give, then primary key, and now in bracket you have to give the column name. तो column नाम मैंने दे दिया rn, जो आपके table का column है rn, जिसके ऊपर आपको primary key लगाना है, and just semicolon. If I am now again using a describe table command, you can see now the primary key and null में yes के बजाय no आ गया है rn के अंदर. So you can add a primary key constraint after table creation also. Now I want to drop this constraint, so I will going to use alter table A1 drop constraint. और constraint create करते हुए हमने नाम दिया था यहाँ पे P1, so you have to use the name of constraint as P1. मैडम वो नाम A1 दे दिया टेबल का. Yeah, I have, yes, right. I have to give the name as A2. Still it is why it is not using. Okay. We'll see दोनों कमांड क्यों रन नहीं हो रहे हैं कंस्ट्रेंट के. We will check out alter table, table name, drop constraint, प्राइमरी की देख के देखते हैं हम. ओके अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे why it is not doing that. ओके ठीक है, ड्रॉप कैसे करना है आई विल जस्ट शो यू आफ्टर सम टाइम, क्योंकि शायद कुछ तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, समथिंग कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से ड्रॉप नहीं हो रहा है. बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ऐड primary key when you are creating a table, how to add a primary key after creating a table, and when you are adding a primary key to a column, it is not going to allow duplicate values and it is not going to allow a null value. So again you can create a primary key for more than one column. जैसे एग्जाम्पल लो, अभी हमने एक टेबल बना लिया, create table A3. Okay, here I have used name, varchar, size, then address, varchar 30, then suppose date of birth, then date of birth के लिए we have used date likewise. Okay, and now I want to add a primary key. Now you can see प्राइमरी की मैं नेम के लिए नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि नेम काफी बार बहुत सारे लोगों के नेम सेम हो सकते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं है. अगर आपका कोई शॉप है जिसमें कस्टमर्स का आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो कस्टमर के नाम डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए आपके हाथ में, नहीं, बिकॉज नेम कैन बी डुप्लीकेट, अगेन एड्रेस कैन बी डुप्लीकेट, काफी सारे कस्टमर सेम लोकेशन को बिलोंग कर सकते हैं, देन डेट ऑफ बर्थ कैन बी डुप्लीकेट. नाउ बट आई वांट टू ऐड अ प्राइमरी की, कुछ ना कुछ तो यूनिक की मुझे इसमें बनाना है कि जिसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए. अब तीनों में कोई भी यूनिक नहीं है, सो आई कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम टू मेक अ प्राइमरी की, जिसमें आप नेम और डेट ऑफ बर्थ ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते कि ये दोनों कॉलम की वैल्यू जहां पे यूनिक रहेगी.
ओके तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूनिक बना सकते हो. तो यू कैन मेक अ 16 कॉलम एज अ प्राइमरी की इन कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की. अब प्राइमरी की मैंने कॉमा के बाद लिखा है, किसी भी कॉलम के आगे नहीं लिखा है. हर कॉलम का नाम कंप्लीट होने के बाद कॉमा के बाद लिखा है. सो इट इज कॉल्ड एज द कॉलम लेवल टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. जब आप प्राइमरी की, अगर मैं प्राइमरी की यहाँ पे ऐड कर देती, सपोज इफ आई एम एडिंग अ प्राइमरी की हियर, तो ये मेरा बन जाता था कॉलम लेवल का कंस्ट्रेंट जो सिर्फ एक कॉलम के लिए हम बना रहे हैं. ओके नाउ आई एम एडिंग अ प्राइमरी की एट द एंड ऑफ टेबल. जितने कॉलम है आप सब कॉलम का डेफिनेशन लिख डालो, उसका डेटा टाइप साइज लिख डालो. आफ्टर द लास्ट कॉलम you put the comma, give the primary key, and then in bracket put the column to which you want to make a primary key. जैसे मैंने डाल दिया name, कॉमा यहाँ पे डाल दिया सपोज DOB. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो इसको बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. Okay, if now I am trying to describe the table A3, so you can see primary की आपके दो कॉलम में आ गया है. ओके और दोनों के लिए नल ये वैल्यू क्या आ गई है, कंस्ट्रेंट में आ गई है. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्राइमरी की ऑन मोर देन वन कॉलम. तो ऐसे आप मैक्सिमम 16 कॉलम को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना सकते हो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की. इज देयर एनी इशू विद दिस? Now we are moving toward our next constraint, that is a default constraint. Default constraint का यूज तब होता है जब अगर किसी ने null value डाली है तो ऑटोमेटिक कोई वैल्यू आपके MySQL ने या आपके डेटाबेस ने स्टोर कर देनी चाहिए. एग्जाम्पल कि अगर हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज में अगर हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और हमको लग रहा है कि 80 से 90% स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो चांदवड़ के ही है, चांदवड़ को बिलोंग कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द चांदवड़ फॉर एवरी स्टूडेंट, अगर मैंने चांदवड़ ये वैल्यू नहीं लिखी, मतलब मैंने वैल्यू ही नहीं दिया एड्रेस के लिए, तो बाय डिफॉल्ट उसने चांदवड़ वैल्यू क्या कर देनी चाहिए, वहां पे पुट कर देनी चाहिए. सो लाइकवाइज यू कैन ऐड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. हम एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा. तो यहाँ पे सपोज हमने एक टेबल बना दिया, क्रिएट टेबल. सपोज हम नाम देते हैं स्टूडेंट, देन first column roll number, then suppose name, and I have used here address as a varchar with size something, and now I have added here default constraint. okay, इसके आगे जाके default लिख दिया स्पेस, क्या वैल्यू बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए. तो मैंने बोला कि जैसे चांदवड़ ये वैल्यू डिफॉल्ट आनी चाहिए. सो यहाँ पे सिंगल कोट में इफ इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू यू हैव टू गिव इन अ सिंगल कोट. अगर आप डिफॉल्ट ही कंस्टेंट रोल नंबर के लिए लोगे जिसकी वैल्यू इंटीजर है, तो आपको डिफॉल्ट के आगे जो वैल्यू लिखोगे उसको सिंगल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन योर वैल्यू इज इन अ स्ट्रिंग you have to give it in a single quote. So suppose I have put it here as a value for default is a Chandwad. Okay, and then I have added a semicolon. Then describe student. So now you can see the difference here. For roll number, we have not added any default value, so null. For name, no default value, so null. For address, we have added the default value as it's Chandwad. कि जब भी यूजर null value put करेगा तो by default उसने value क्या लेनी चाहिए, Chandwad लेनी चाहिए. Okay, so we will add some rows in this so you can understand the concept. So here I have added insert into stud. Now I am putting the values for each and every column. तीनों column के लिए दे रही हूँ मैं value. यहाँ पे मैंने डाल दिया values और यहाँ पे मैंने डाल दी वैल्यू रोल नंबर 1 रोल नंबर के लिए 1 वैल्यू. फॉर नेम आई हैव गिवन सपोज नेम एज अशिता एंड सपोज एड्रेस आई हैव पुटेड एज अ नासिक. ओके, आई हैव गिवन द वैल्यू फॉर एड्रेस नाउ. सो व्हेन आई एम यूजिंग अ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, जो भी मैंने इंसर्ट किया वो चेक कर रही हूँ तो एज इट इज वो वैल्यू ली है. ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू only for roll number and name, and I want to make a address as a null. I don't want to give the value for address, so I am putting here that I am giving the value for roll number and for name. That's it.
जब आपको किसी कॉलम की वैल्यू नहीं देनी तो आपको कॉलम्स के नाम बताने पड़ते हैं जिसकी वैल्यू आप दे रहे हो। जब आप हर कॉलम की वैल्यू देने वाले हो तो आपको यहाँ पे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं। सो वैल्यूज डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दी रोल नंबर की वैल्यू, और यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोज नेम. So I have not given the value for address. Now if I am using the select star command, so you can see कि यहाँ पे null value नहीं आया है एड्रेस के लिए. जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया था चांदवड़, तो बाय डिफॉल्ट चांदवड़ उसने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया. सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू वेयर आई एम जस्ट वांट टू गिव द वैल्यू फॉर रोल नंबर, और अभी मैं नेम और एड्रेस दोनों को नल रख रही हूँ. ओके, सिर्फ रोल नंबर के लिए वैल्यू दे रही हूँ. ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कमांड स्टूडेंट, कैन यू टेल? नेम के जगह पे नल आएगा और एड्रेस डिफॉल्ट चांदवड़ आएगा. वेरी गुड, राइट, वेरी गुड आंसर. सो यू कैन सी जब हमने ये वाला वैल्यू इंसर्ट किया, सो रोल नंबर की वैल्यू उसने ले ली, बट नेम के लिए कुछ वैल्यू नहीं दी, और हमने डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट डाला नहीं नेम के लिए, सो इट इज गोइंग टू पुट द नल वैल्यू. And for address we have put the default constraint, so by default it has taken the value as a chan word. Understood the use of default constraint? So now if I want to remove the constraint whatever I have added, so how to add the remove that constraint? तो यहाँ पे हम डाल देंगे alter table, टेबल का नाम हमने डाल दिया stud. ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने कौन से कॉलम के लिए ऐड किया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस के लिए. सो अगेन यू हैव टू यूज हियर modify. Okay, address is in our capital. Okay, address, और डेटा टाइप और साइज खाली डाल दो यहाँ पे. सो डेटा टाइप इज varchar and now size given is 30. And if I am trying to use a describe command here, so you can see default में null value आ गया by default, मतलब जो हमने default constraint ऐड किया था वो remove हो गया. So it's very easy to remove the default constraint. So I hope you understand how to add a default constraint. Default constraint को check कैसे करना है, by inserting a values in a table and putting that column value as a null. So it will take a default by default value as a default value. When you want to remove or drop that constraint, you just have to use alter table, table name, modify, again the column name, data type and size, and don't put the default. So तो वो ऑटोमेटिक उस कंस्ट्रेंट को क्या करेगा, वहां से निकाल देगा. ओके, अब हमारा टेबल रेडी है लेकिन इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं है. तो इफ यू वांट टू नाउ अगेन वांट टू ऐड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन, अब हमारे पास टेबल है स्टूड लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने निकाल दिया है. अभी आपको लग रहा है कि वापस मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड करना है. सो अगेन इट्स वेरी इजी. अगेन यूज द सेम कमांड अल्टर टेबल स्टूड मॉडिफाई एड्रेस सेम एंड जस्ट पुट हियर डिफॉल्ट एंड पुट द वैल्यू. अभी सपोज चांदवड़ के बजाय मैंने वैल्यू डाल दिया है नासिक. एंड इफ नाउ आई एम यूजिंग अ डिस्क्राइब कमांड, तो आप देखोगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है, बट डिफॉल्ट में वैल्यू हमने क्या डाल दी अभी, नासिक. इसके लिए अब अगर मैं नल वैल्यूज इंसर्ट करूंगी एड्रेस में, तो इंस्टेड ऑफ चांदवड़ इट इज गोइंग टू टेक द वैल्यू एज अ नासिक. सो इट्स वेरी इजी टू ऐड द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट at the time of table creation or after table creation. Again it is very easy to drop that constraint. So this is the end of our fourth constraint. Not null देखा है, unique देखा, primary key देखा, and then default देखा. Then next constraint is our check constraint. Okay, so check constraint जो होता है कि जब आपको चेक करना है कि कुछ कॉलम की वैल्यू जो है ये पर्टिकुलर उस रेंज के अंदर ही आनी चाहिए. ओके, जैसे मैंने बोला कि कोई भी जो क्लास है उसमें जो रोल नंबर है, रोल नंबर की वैल्यू 1 से 100 के बीच में ही आनी चाहिए. अगर 100 के ऊपर कोई ट्राई करेगा रोल नंबर की वैल्यू इंसर्ट करने का, तो उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वहां पे एरर देना चाहिए. यू कैन नॉट insert or you cannot put the value for roll number greater than 100. So आपने restrict कर दिया values को. So that can be possible with the check constraint. Again second example, अगर आपका बैंक का अकाउंट है और आपको बैंक का जो ओनर है उसको लगता है कि हर एक के बैंक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 100 रुपीज होना ही चाहिए, मिनिमम 1000 रुपीज होना चाहिए. सो जब भी आप विड्रॉ करने जाओगे पैसे और विड्रॉ के बाद अगर 1000 के नीचे जा रही वैल्यू, सो ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू.
सो दैट इज अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ चेक। लेकिन MySQL का जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं 5.7, इसमें आप चेक कंस्ट्रेंट बना तो सकते हो लेकिन वो अप्लाई नहीं होता है, मतलब उसका कुछ यूज नहीं होता है। जो MySQL का 8th वर्जन आया है लेटेस्ट 8.1 के आगे, खाली उसमें ही चेक कंस्ट्रेंट एक्चुअल में इन्फोर्स होता है। आप उसके पहले के वर्जन में चेक ये कंस्ट्रेंट बना सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं होता है, चेक नहीं किया जाता है। इसके लिए मैं सिर्फ बताऊंगी इसको कैसे ऐड करना है। If you have a more than 8th version of MySQL, then it is going to be enforced in the table. Okay. अब इसको कैसे ऐड करना है वो हम देखते हैं। अब हम एक सिंपल टेबल बनाते हैं। Suppose I have created a table. एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना दिया। ओके यहाँ पे हमने डाल दिया एम्प्लॉय नंबर इंट, उसकी वैल्यू डाल दी, और मुझे लग रहा है कि इसको मुझे चेक करना है, सो हमने एक चेक कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया। चेक in bracket e number should be less than 100, कि e number की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी बट ये वैल्यू 100 से लेस या 101 से लेस, मतलब सिर्फ 100 तक ही जाएगी। सो ये हमने चेक वाला कंस्ट्रेंट यहाँ पे अटैच कर दिया। देन सेकेंड कॉलम जो भी आपको डालना है वो हमने डाल दिया। सपोज वी हैव पुटेड द ई नेम। ओके Now if I am using a describe command, so check ये constraint ऐसा है कि आपने वो ऐड किया है या नहीं किया, ये describe टेबल में कहीं पे भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता है। So you can see there is no reflection of check constraint when you are using a describe command. बाकी आप unique की, default, not null, check, every constraint को आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन चेक ये constraint को आपको कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके सो यहाँ पे हमने कर दिया। नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू इन दिस टेबल हुज एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन 101 और 100, बट एक्चुअल में उसने एरर देना चाहिए, लेकिन ये वाले वर्जन में हमको एरर नहीं आता है। ओके सो वी विल सी इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। अब मैंने डाल दिया 102, सो हमारे रेंज के आगे मैंने वैल्यू डाल दी एंड कुछ नाम डाल दिया। ओके वैल्यूज का स्पेलिंग। सो यू कैन सी इट हैज एक्सेप्टेड द वैल्यू 102, जबकि उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन में काम करोगे तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली एरर देगा। सो चेक कंस्ट्रेंट कैसे दिया जाता है वो मैंने बताया। ऐसे ही आप आपका टेबल अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो भी आप ये कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे स्टूड टेबल है, सो स्टूड टेबल में रोल नंबर की जो फील्ड है उसके ऊपर मुझे चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना है। सो आफ्टर टेबल क्रिएशन हाउ यू आर गोइंग टू ऐड अ चेक कंस्ट्रेंट ऑन रोल नंबर ऑन स्टूड टेबल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूड, देन आई हैव टू यूज द ऐड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को कुछ भी नाम दे दो, जैसे हमने P1 दिया था वैसे मेरा चेक कंस्ट्रेंट इसके लिए मैंने नाम दिया C1। देन चेक, क्या चेक करना है कि रोल नंबर की वैल्यू जो है ये लेस देन क्या होनी चाहिए। सपोज लेस देन हमेशा 80 तक ही अलाउड है, सेमीकोलन। सो आप देखो कि ये कंस्ट्रेंट अप्लाई तो कर देता है लेकिन उसको चेक नहीं करता है जब आप कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। सो हाउ टू अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट एट टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन और आफ्टर टेबल क्रिएशन। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर चेक कंस्ट्रेंट। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट in the MySQL, that is foreign key or referential key. So here we have completed this 5 constraint. So now we'll see the foreign key or reference key. अब reference key आपको नाम से ही समझ में आएगा, जब कोई constraint, जब कोई कॉलम, एक टेबल का कॉलम किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम को रेफर करता है तो हम उसको बोलते हैं रेफरेंशियल की। ओके तो एक छोटा हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारा कॉलेज जो है, इस कॉलेज के लिए हमको स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है। ओके तो जिसमें स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, यानी स्टूडेंट का
रोल नंबर, नेम, कौन से क्लास का है, उसका एड्रेस, उसका ब्लड ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक जगह स्टोर कर दी। और दूसरा एक टेबल हमने बनाया जिसमें उस स्टूडेंट की एकेडमिक इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर हम वहां पे लेंगे, उसका नाम वाम सब दूसरे टेबल में है, और इस टेबल में हम सिर्फ उसके मार्क्स डालेंगे, सब्जेक्ट 1 के मार्क, 2 के मार्क, 3 के मार्क। लेकिन दोनों टेबल में जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो स्टूडेंट मेरे क्लास में है तो ही मैं उसके मार्क्स क्या करूंगी, ऐड करूंगी। सो इन दिस वी हैव टू क्रिएट अ 2 टेबल, stud1 एंड stud2। stud1 में हम डायरेक्टली बनाते हैं, आपको समझ जाएगा साइड बाय साइड। सो वी हैव क्रिएटेड 2 टेबल। फर्स्ट टेबल सपोज आई हैव क्रिएटेड stud1 जिसमें हमने डाल दिया रोल नंबर int 3। जब आपको फॉरेन की बनाना है तो एक टेबल में वो कॉलम प्राइमरी की होता है और दूसरे टेबल में सेम कॉलम बनता है फॉरेन की, दैट इज रेफरेंस की। सो यहाँ पे हमने डाल दिया प्राइमरी की। ओके, फर्स्ट टेबल में ये वैल्यू मेरी बन गई प्राइमरी की। देन आई हैव एडेड सपोज इट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसका नाम ऐड कर दिया, एड्रेस ऐड कर दिया हमने। ओके, सो दिस इज stud1 टेबल जो हमने सिंपल टेबल बनाया। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ सेकेंड टेबल जिसमें मैंने लिया रोल नंबर, सेम कॉलम, इंट, साइज सेम ली। ओके, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्राइमरी की नहीं बना रही हूँ, इसको मुझे बनाना है फॉरेन की। ओके, लेकिन अब ये फॉरेन की जो कंस्टेंट है हम टेबल लेवल पे देंगे। ओके, अब इसके बाद मैंने सपोज इसके मार्क्स डाल दिए कि हमने डाल दिया कॉमा M1 सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हमको मार्क्स डालने हैं, तो यहाँ पे मैंने उसका डेटा टाइप ले लिया इंट। देन सेकेंड M1 के बजाय हम लेते हैं S1। सो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, देन सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, देन सब्जेक्ट 3 के मार्क्स। ओके, ऐसे हमारे कुछ कॉलम्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग हियर फॉरेन की, एक नाम दे दिया फॉरेन की को। ओके, फॉरेन की इस टेबल में मैं बनाना चाहती हूँ रोल नंबर को। सो आई हैव पुटेड हियर रोल नंबर। अब ये जो रोल नंबर है ये इसकी वैल्यू किससे मिलती जुलती होनी चाहिए, स्टूडेंट 1 के रोल नंबर से। अगर यहाँ के टेबल में रोल नंबर 1, 2, 3 है तो मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 1, 2 और 3। आई कैन नॉट पुट अ डिफरेंट वैल्यू। ओके, और कोई वैल्यू इस टेबल से डिलीट हो जाती है तो सेम वैल्यू इस टेबल से ऑटोमेटिक डिलीट हो जानी चाहिए, तो उन दोनों में कुछ कनेक्शन बनना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया रेफरेंसेस। सो ये रेफर कर रहा है stud1 टेबल के रोल नंबर, ये कॉलम को, ये टेबल का जो रोल नंबर है ये stud1 के रोल नंबर, ये कॉलम को क्या करने वाला है, रेफर करने वाला है। सो आई एम मेकिंग अ फॉरेन की F1 or from this table roll number who is going to refer the roll number column of stud1। लेकिन कैसे रेफर करने वाला है, ऑन अपडेट cascade, on delete cascade। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, ऑन अपडेट cascade, ऑन डिलीट cascade। अब मैं एक दोनों में वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इसमें। सपोज मैंने ऐड किया इंसर्ट इनटू stud1, वैल्यू हमने डाल दी रोल नंबर के लिए 1, नेम के लिए वैल्यू डाली। अब आप एक साथ मोर देन 1 रोज भी इंसर्ट कर सकते हो जस्ट कॉमा प्रोवाइड करके। व्हाट हैपन, अच्छा 3 कॉलम से हमारे। सो 3 वैल्यूज हमको देनी पड़ेगी, रोल नंबर, नेम कॉमा एड्रेस हमने डाल दिया सपोज। यहाँ पे अभी ना टाइम थोड़ा कम है, 2 ही मिनट्स बचे हैं, तो स्टूडेंट्स मैं एक लिंक वापस आपके साथ एक 5 मिनट्स में शेयर करूंगी। हर एक को ज्वाइन होना है क्योंकि ये टॉपिक आज ही हमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वीक के बाद आपको ये समझ में नहीं आएगा फॉरेन की। तो 1.5 मिनट के बाद एक थोड़ा 5 मिनट का गैप लेके आपके टी के ग्रुप पे मैं एक लिंक शेयर करूंगी, तो उसको सब जन ज्वाइन हो जाना। ये प्रैक्टिकल हम कंटिन्यू देखेंगे आज वापस। ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया
I am just putting a 3 rows here. Okay, I am using select star from stud1. तो stud1 में हमने 3 rows insert कर दिए है. Same I am putting 3 rows in stud2. तो stud2 में है roll number और 3 subjects के marks हमको डालने हैं. So here are roll number S1, S2 and S3. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया insert into stud2 values. यहाँ पे मैंने डाल दिया रोल नंबर 1, मार्क्स डाल दिया फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, कॉमा रोल नंबर 2, देन मार्क्स, कॉमा now I am using select star from stud2. ओके, सो हियर यू कैन सी दोनों टेबल में वैल्यूज आ गई है. अब मैं फर्स्ट टेबल से अगर कोई रो डिलीट करूंगी तो यू कैन सी सेकेंड टेबल से भी क्या हो जाएगी, वो रो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी. ओके, अब मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि 1 मिनट ही बाकी है और मैं एक लिंक शेयर करूंगी आपको 2-3 मिनट के अंदर. अगेन एवरीवन हैज टू ज्वाइन देयर. मैडम वॉइस नहीं आ रहा है आपका. हेलो हेलो हेलो, या आ रहा है क्या अभी आवाज? यस मैम, यस. ओके ओके, यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब हमने फर्स्ट टेबल से रोल नंबर 1 जो है ये मैंने इसको डिलीट कर दिया. रोल नंबर 1 जो है फर्स्ट टेबल stud1 से डिलीट किया तो टेबल 1 में से रोल नंबर 1 चला गया, लेकिन मैंने stud2 में से तो डिलीट नहीं किया है. लेकिन जैसे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stud2 करूंगी यू कैन सी कि इसमें पहले 3 वैल्यूज थी, अब ऑटोमेटिकली रोल नंबर डिलीट हो गया और सिर्फ 2 वैल्यू रही. बिकॉज फॉरेन की जब हमने बनाया तो हमने लिखा था ऑन डिलीट कास्केड. कास्केड मतलब फर्स्ट टेबल में से जहाँ पे प्राइमरी की है वहां से जैसे ही कोई वैल्यू रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली सेकेंड टेबल जहाँ पे फॉरेन की वो वैल्यू रिमूव होनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टेबल जो है लाइक स्टूड, इसमें अगर मैंने रोल नंबर 2 की वैल्यू अपडेट की और इसको 2 के बजाय 20 किया तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू स्टूड 2 में भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी. यहाँ पे हम करते हैं अपडेट stud1 set roll number equal to 20 where roll number equal to 2. जहां पे भी रोल नंबर 2 है वहां पे जाके 2 के बजाय उसको 20 कर दो. तो यहाँ पे मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stud1. सो stud1 में 2 की वैल्यू 20 हो गई तो 3 से बड़ी हो गई, इसके लिए वो नीचे आ गई. अभी सेम हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सिलेक्ट इट फ्रॉम stud2. तो आप देखोगे कि अगेन stud2 में रोल नंबर 2 के बजाय ऑटोमेटिकली वहां पे वैल्यू क्या आ गई है, 20 आ गए. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉरेन की. जब आपका कोई एक टेबल की वैल्यू किसी और टेबल पे डिपेंडेंट है तो जैसे ही फर्स्ट टेबल में कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब अपडेशन होते हैं या डिलीशन होते हैं, तो आपको सेकेंड टेबल में वो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो प्राइमरी की और फॉरेन की ये क्या करता है, 2 टेबल को एक साथ ज्वाइंट कर देता है, कनेक्ट कर देता है. ओके, सो फॉरेन की में फर्स्ट कंसेप्ट एक कॉलम पहले वो प्राइमरी की होना चाहिए, तभी आप उसी कॉलम को उसी टेबल में या किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की बना सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको एंड किया है. हमारे सब कंस्ट्रेंट
यहाँ पे खत्म हो गए हैं ऑल 6 कंस्ट्रेंट। सेकेंड प्रैक्टिकल में से अभी भी हमारे 3 पॉइंट्स बाकी है जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो मंडे को रहेगा तभी खत्म करेंगे। दैट इज हाउ टू क्रिएट अ इंडेक्स, हाउ टू क्रिएट अ व्यू एंड हाउ टू क्रिएट अ सीक्वेंस। तो 3 पॉइंट्स हमारे बाकी है। यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा प्रैक्टिकल है। तो हमने डीडीएल के सब कमांड्स देखे, 6 टाइप्स के हमने कंस्ट्रेंट देखे, उसको कैसे ऐड करना है, कैसे चेक करना है, कैसे उसको रिमूव किया जाता है। ओके अब आप ये वीक में ये सब की प्रैक्टिस कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके फाइनल थ्योरी एग्जाम में भी कंस्ट्रेंट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आती है। सो यू रिक्वायर प्रैक्टिस। जितने कंस्ट्रेंट पढ़ा है सब प्रैक्टिस कीजिए। आपको लग रहा है कोई कंस्ट्रेंट रिपीट करना है तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम डेफिनेटली उसको रिपीट करेंगे। सो ओके, थैंक यू। आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग क्योंकि 3 बजे आपको और एक मीटिंग